गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हम लोग टाइप्स ऑफ पावर डायोड देखेंगे, ठीक है। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. And there are basically two types of characteristics of power diode. The first one is switching characteristics and the second one is reverse recovery characteristics. Now in this particular video lecture we are currently going to discuss regarding the types of power diode. Now friends, on the basis of basically reverse recovery characteristics, on the basis of reverse recovery characteristics, there are three types of basically power diode. The first one is general purpose diode, the second one is fast recovery diode, and the third one is Schottky diode. Now friends, what we are going to discuss is basically types of power diode, and on the basis of basically reverse recovery characteristics, the power diode is classified into three types. The first one is general purpose, the second one is fast recovery, and the third one is Schottky diode. If we talk regarding general purpose diode, then they have high power rating and they have low cost, and voltage rating of general purpose diode is up to 50 volt to 5 kV. If we talk regarding the voltage drop, then its voltage drop will be up to 50 volt, from 50 volt to 5 kV. Now the second one is high reverse recovery characteristics, that is 25 microsecond, and it is basically used in battery, UPS, electric traction. UPS means uninterrupted power supply, battery and electric traction. This is basically the application of general purpose diode. Now as we move on to the fast recovery diode, if we talk regarding its recovery time, then its reverse recovery time is basically less than or equal to 5 microsecond, and it is basically used in high power rating, and its voltage rating is basically from 50 volt to 3 kV. And in this type means in this fast recovery diode, basically we do doping of platinum and gold in order to decrease basically the recovery time, in order to basically decrease the recovery time. And as we do doping of platinum and gold, there is a disadvantage that its forward voltage drop increases. The one advantage is that its recovery time decreases, but on the other hand, if we talk regarding its disadvantage of doping platinum and gold, then that is basically that its इनका जो बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या होता है बेसिकली डिक्रीज कर जाता है. और इसका जो अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, उनको चॉपर में यूज करते हैं. कम्यूटेशन सर्किट मीन्स टर्न ऑफ सर्किट में उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है. और इसको एज अ फ्री व्हीलिंग डायोड भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, द थर्ड वन इज बेसिकली Schottky diode, and Schottky diode is basically a metal semiconductor junction, and which is basically used to decrease the forward voltage drop up to 0.3 to 0.4 volt. Schottky diode बेसिकली क्या होता है, इसमें जो होता है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, जिसके कारण मेरा क्या होता है, जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है मेरा डिक्रीज होकर कहाँ तक आ जाता है, 0.3 वोल्ट से 0.4 वोल्ट तक, ठीक है. और इसको जो होता है बेसिकली हम लो पावर एप्लीकेशन में यूज करते हैं. अगर हम इसका वोल्टेज रेटिंग देखेंगे कहाँ तक हम लोग यूज कर सकते हैं, तो लेस देन 300 वोल्ट और 10 से 20 एम्पियर तक का जहाँ तक एप्लीकेशन होता है वहाँ तक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. एंड इफ यू टॉक रिगार्डिंग इट्स एप्लीकेशन, देन दैट इज बेसिकली यूज इन power supply application. Now friends, in the next topic we are going to discuss basically the VI characteristics of power diode, ideal diode and signal diode, and then the next topic will be basically the comparison between the signal diode and power diode. Now friends, we are going to discuss basically the VI characteristics of power diode, ठीक है. तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, VI characteristics of power diode के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो मेरा जैसे बेसिकली क्या होता है, जो VI characteristics होता है वो मेरा एनोड करंट I है, और जो VVR के बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है. तो देखिएगा सबसे पहले जो मेरा पावर डायोड है उसका VI characteristics प्लॉट करने से पहले जो मेरा आइडियल डायोड होता है, मेरा क्या होता है, आइडियल डायोड होता है, ठीक है. और जो मेरा दूसरा सिग्नल डायोड है, जिसको कि हम लोग PN जंक्शन डायोड बोलते हैं, PN जंक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं, ठीक है. और द थर्ड वन इज बेसिकली क्या है, मेरा पावर डायोड है, ठीक है, पावर डायोड है, ठीक है. अब देखिए सबसे पहले हम लोग आइडियल डायोड का प्लॉट करते हैं. तो आइडियल डायोड है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी. आइडियल डायोड में बेसिकली क्या होगा, मेरा जो एनोड करंट है इन्फाइनाइट तक जाएगा, और फिर मेरा रिवर्स में इधर जाएगा कितना, इन्फाइनाइट तक चला जाएगा. ये मेरा बेसिकली क्या होगा, एनोड करंट का हो गया, ठीक है. मेरा क्या होगा, एनोड का ये मेरा बेसिकली क्या होगा, आइडियल डायोड का हो गया, ठीक है, आइडियल डायोड का हो गया, ठीक है. यहाँ पे भी मेरा ये बेसिकली क्या हो गया, इन्फिनाइट तक मेरा क्या हो गया, आइडियल डायोड का हो गया, ठीक है, आइडियल डायोड तक हो गया. अब देखते हैं सेकंड में क्या है, सिग्नल डायोड और PN जंक्शन डायोड. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि PN जंक्शन डायोड में क्या होता है, सबसे पहले वोल्टेज होता है
वोल्टेज मेरा क्या होता है 0 रहता है। फिर 0.7 से मेरा क्या होता है, अगर सिलिकन की अगर हम लोग बात करें, सिलिकन के केस में क्या होता है 0.7 के बाद हम लोग क्या होता है एक्सपोनेंशियली राइज करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरा क्या होता है लीनियरली राइज करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कटिंग वोल्टेज बोलते हैं 0.7 वोल्ट अगर हम लोग सिलिकन की बात करें तो, ठीक है। वही अगर हम लोग रिवर्स में बात करें तो रिवर्स में बेसिकली क्या होता है, कुछ यहाँ पे मेरा क्या होता है, यहाँ पे VBR होता है, ठीक है। VBR बेसिकली मेरा क्या होता है VBR, और ये मेरा क्या होता है वोल्ट में होता है, ठीक है। एज इन केस ऑफ सिग्नल डायोड, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया बेसिकली एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियली हो गया, और कुछ टाइम के बाद फिर मेरा क्या होता है लीनियरली होता है, लीनियरली राइज करता है, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करते हैं, ये मेरा क्या होगा सिग्नल डायोड हो गया, ठीक है। सिग्नल डायोड का मेरा क्या होगा, सिग्नल डायोड का मेरा क्या होगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। और वही अगर हम लोग बात करते हैं, वही अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का, अगर वही हम लोग पावर डायोड का बात करते हैं तो पावर डायोड में क्या होता है, मेरा जो कटिंग वोल्टेज होता है वो बेसिकली क्या होता है 1 वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट आने के बाद ये मेरा क्या होता है लीनियरली राइज करता है, ठीक है। इसका जो वोल्टेज है कटिंग वोल्टेज क्या होगा 1 वोल्ट होगा, ठीक है, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली मेरा क्या होता है 1 वोल्ट के बाद मेरा क्या होता है, ये मेरा लीनियरली राइज करता है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है लीनियरली राइज करता है, ठीक है। लेकिन वही अगर सिग्नल डायोड की बात करें तो सिग्नल डायोड में मेरा क्या होता है एक्सपोनेंशियली राइज करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मेरा क्या होता है, इसका जो VBR का वैल्यू होता है क्या होता है, ये जो मेरा किलो वोल्ट में होता है, ठीक है। एज इन केस ऑफ पावर डायोड मेरा क्या होता है किलो वोल्ट में होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए कि जो मैं ये मेरा बेसिकली क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या है कंपैरिजन करके हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सबसे पहले सिग्नल डायोड का, सिग्नल डायोड में बेसिकली क्या होता है मेरा जो एनोड करंट है हम लोग मान लेते हैं इन्फिनिट तक, और फिर मेरा इसमें जो है अगर हम लोग VBR का मान लेते तो इसमें भी मान लेते हैं कि VBR जो मेरा क्या इन्फिनिट है। फिर उसके बाद मेरा अगर हम लोग बात करें सिग्नल डायोड मीन्स PN जंक्शन डायोड, तो PN जंक्शन डायोड में क्या होगा 0.7 वोल्ट अगर जो मेरा कटिंग वोल्टेज होता है, और कटिंग वोल्टेज के बाद मेरा क्या होता है एक्सपोनेंशियली राइज करता है, एक्सपोनेंशियली राइज करता है पहले, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद मेरा लीनियरली राइज करता है। ये जो होता है बेसिकली क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर रिवर्स में अगर तो रिवर्स में बेसिकली मेरा क्या होता है कि VBR का वैल्यू जो होता है इसका वोल्ट में होता है, और फिर उसके बाद मेरा क्या होता है कि जो होता है बेसिकली इसका जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि रिवर्स में क्या होता है कि बेसिकली इसका जो जैसा होता है ब्रेक कर देता है, फिर उसमें करंट क्या होता है इंक्रीज करने लगता है, ठीक है, ड्रास्टिकली। उसके बाद फिर हम लोग अगर बात करते हैं पावर डायोड की, तो पावर डायोड में बेसिकली क्या होता है इसका कटिंग वोल्टेज 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट आने के बाद क्या होता है उसके बाद फिर बेसिकली क्या होता है मेरा ये डायरेक्टली लीनियरली राइज करता है, ठीक है। और एज इन केस ऑफ सिग्नल डायोड मेरा क्या था कि वो मेरा बेसिकली क्या किया था कि मेरा एक्सपोनेंशियली राइज किया था। लेकिन जो मेरा पावर डायोड होता है, पावर डायोड में बेसिकली मेरा क्या होता है, पावर डायोड में बेसिकली मेरा क्या होता है, पावर डायोड में जो होता है बेसिकली मेरा लीनियरली राइज करता है। ये जो बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट का जो कुछ भी इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो उसमें क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो मेरा कटिंग वोल्टेज के बाद जो होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो कटिंग वोल्टेज के बाद जो होता है मेरा जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से राइज करता है एज इन केस ऑफ पावर डायोड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं लीनियरली राइज करता है मेरा, ठीक है। वही अगर हम लोग रिवर्स में बात करें तो जो मेरा अगर VBR का जो वैल्यू है मतलब ये रिवर्स में अगर हम लोग बात करें तो जो मेरा पावर डायोड है वो किलो वोल्ट में जो होता है लगभग, ये जनरली जो होता है लगभग जो होता है ये किलो वोल्ट में जो होता है बेसिकली वोल्टेज को रिवर्स करके रखता है, मीन्स ब्लॉक करके रखता है। देखिए उसके बाद बेसिकली अगर हम देखें कि व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड देन इट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बैटरी का जो एनोड होता है उसको, बैटरी का जो पॉजिटिव एनोड होता है उसको हम लोग जो डायोड के एनोड से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर बैटरी का जो नेगेटिव होता है उसको हम लोग जो होता है डायोड के अगर हम लोग कैथोड से कनेक्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। ये मेरा बेसिकली क्या होगा फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या होता है द वोल्टेज एट विच डायोड स्टार्ट्स कंडक्शन इज नोन एज कटिंग वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। मीन्स कि जिस वोल्टेज से मेरा जो डायोड होता है अगर हम लोग जो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली हम लोग कटिंग वोल्टेज बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग PN जंक्शन डायोड की केस में अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है 0.7 वोल्ट है। 0.7 वोल्ट के बाद एज इन केस ऑफ सिलिकन, सिलिकन के केस में मेरा क्या होता है कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कटिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। वही अगर हम लोग पावर डायोड की बात करें तो पावर डायोड में बेसिकली मेरा क्या होता है कि जो कटिंग वोल्टेज होता है 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट के बाद उसमें क्या होता है बेसिकली मेरा जो कंडक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कटिंग वोल्टेज की अगर बात करें एज इन केस ऑफ पावर डायोड तो मेरा क्या होता है 1 वोल्ट होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें कि रिवर्स बायस मोड में मेरा क्या होता है कि जो पावर डायोड है वो क्या होता है मेरा कि जो वैल्यू किलो वोल्ट में जो होता है मेरा ब्रेक ओवर वोल्टेज को हैंडल कर सकता है, ठीक है।
Now friends, we will discuss basically the difference between signal diode and power diode. ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, डिफरेंस को डिस्कस करेंगे सिग्नल डायोड एंड पावर डायोड. सिग्नल डायोड मीन्स बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, तो देखिए सिग्नल डायोड में मेरा क्या होता है, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है. ठीक है, पी प्लस पी लेयर होता है, एन लेयर होता है. ठीक है, और फिर ये नोड कैथोड हो गया. ठीक है, ये मेरा बेसिकली सिंबल हो गया पीएन जंक्शन डायोड का. ठीक है, और वही अगर मैं पावर डायोड में बात करते हैं, पावर डायोड में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ड्रिफ्ट लेयर ऐड करते हैं एन माइनस. ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है, जिसके कारण मेरा बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा ये क्या होता है कि हायर पावर को हैंडल करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, अब देखिए उसके बाद मेरा क्या होता है कि अगर हम लोग टर्न ऑन वोल्टेज की बात करें तो सिलिकॉन में बेसिकली 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है. वही अगर हम लोग पावर डायोड की बात करें तो इसका टर्न ऑन वोल्टेज 1 वोल्ट होता है. ठीक है, अगर हम लोग करंट रेटिंग की बात करते हैं इसका मिली एम्पियर में होता है, इसका करंट रेटिंग जो होता है इसका करंट रेटिंग एम्पियर में होता है. ठीक है, अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करें इसका वोल्ट में होता है और इसका जो होता है किलो वोल्ट में होता है. ठीक है, वही अगर हम लोग पावर हैंडलिंग या फिर पावर रेटिंग की बात करते हैं मिली वाट में होता है, इसका वाट से किलो वाट तक होता है. ठीक है, उसके बाद में द फोर्थ डिफरेंस इज बेसिकली एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आफ्टर टर्न ऑन वोल्टेज, आफ्टर जैसे मेरा क्या होगा टर्न ऑन. ठीक है, आफ्टर मेरा जो टर्न ऑन वोल्टेज है, टर्न ऑन के बाद वोल्टेज के बाद मेरा क्या होता है जो ग्राफ होता है एज इन केस ऑफ सिग्नल डायोड मेरा क्या होता है लीनियर, जो मेरा क्या होता है एक्सपोनेंशियली राइज करता है. एंड इफ यू टॉक रिगार्डिंग दी पावर डायोड देन दैट इज बेसिकली राइज लीनियरली. मेरा क्या होता है 1 वोल्ट के बाद मेरा क्या होता है लीनियरली राइज करता है. ठीक है, वही अगर हम लोग जो वीवीआर की बात करते हैं, वीवीआर जो इसका क्या होता है फ्यू वोल्ट्स में होता है और इसका जो वीवीआर होता है क्या होता है किलो वोल्ट में होता है. ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली क्या होगा सिग्नल डायोड और जो मेरा पावर डायोड हो गया उसके बेसिकली क्या होगा उसका जो डिफरेंस के बारे में हो गया. ठीक है, नाउ फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द पावर ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेसिकली उसमें हम लोग क्या करेंगे पावर ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अगर जितने भी हम लोग अभी पढ़े उसका कंटेंट चाहिए तो फिर आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में जो ग्रुप है हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा. आप लोग जो है उसका लिंक जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा. ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर आप लोग ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं या फिर जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग जो होगा बेसिकली अपने डाउट को उसमें रख सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग सॉल्व कर देंगे. ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू.